cell. In this combination, I am just dividing into two parts. One is when cell EMF are same, when they are combined, then what will happen? When the cell having different EMF, when they are combined, then what will happen? Let's see. First we consider when EMF of each cell is same. We consider here the two combination, series combination and parallel combination. In a series combination, I am going to discuss with you. Let there is n cell which are having EMF E and internal resistance R are connected in series with external resistance R. Due to the combination, I current is flowing in the circuit. According to figure, you can see all are having the EMF E and they are connected with it the external resistance R. Now the effective EMF will be NE and the effective internal resistance becomes NR. The total resistance, the series combination of the resistance R is equal to R1 plus R2 formula we use here, then the total resistance become R plus NR. Now according to Ohm's law, E is equal to IR or V is equal to IR, we use here the current becomes I is equal to total EMF over total resistance NE over NR plus R. We have a condition. If NR is very less than R, means then I is equal to NE by R. We are ignoring the NR value in presence of external resistance. We get the current by the N cell. You see, E by R is the cell giving the current by one cell. Now here the N is multiplied, means we get the current by N cell. When NR is very large, then we put this value, we get the current by one cell. So it is obvious here that if you want to get a maximum current by the cell which are having internal resistance R and EMF E, if the internal resistance is very small and to the load resistance or to the external resistance, we connect in series. प्रिय स्टूडेंट्स, आपको ऐसे सेल जिनका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और उनका ईएमएफ है, तो उनसे करंट ज़्यादा पाने के लिए उनका सीरीज कनेक्शन करना ज़रूरी होता है। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू कम आएगी, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। अब आप देखिए, so such cell having very less internal resistance, for getting the maximum current from the cell, it should be combined in a series with the high external resistance. Now I am going to discuss with you parallel combination of cell. अब आप ऐसे सेल लीजिए जिनका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और सेल नंबर ऑफ सेल आर M cell. Let M number of cell are EMF E, internal resistance R, each connected in parallel. Then EMF of the battery will be E and effective internal resistance. अब आप देखिए, जैसे आपके पास सेल हैं, सबके EMF E हैं, तो इस जंक्शन के अलॉन्ग अगर हम देखें तो यहाँ से हमको जंक्शन पर करंट मिलेगी, तो टोटल EMF हमारा E आएगा और इससे जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होगी 1/R डैश इक्वल टू, मान लीजिए 1/R प्लस 1/R प्लस ऐसे हम लिख सकते हैं M/R, और इससे हम R डैश की वैल्यू या इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R/M। देन द टोटल रेजिस्टेंस, अब ये टोटल रेजिस्टेंस जब आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड ऑन होगा तो R प्लस R/M हो जाएगा एंड करंट की वैल्यू फिर I इज इक्वल टू E/R वाले फार्मूला से निकालते हैं। E/R प्लस R/M वैल्यू रख दिया हमने, तो इससे हम M इधर आएगा, उसको हम ऊपर ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो ME/MR प्लस R हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए,
If R means internal resistance is very large than MR, तब हमारी करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू एम ई बाई आर होगी। मीन्स ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, तो उनसे अगर हम करंट मैक्सिमम पाना चाहते हैं तो उनको लो रेजिस्टेंस वाले पैरेलल मोड में ऐड करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम करंट उनसे पाएँ। द सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लार्ज, it should be connected in parallel mode with low resistance for getting maximum current. This is the conclusion for the combination of cells which are having the same EMF. Now come to the topic if the EMF is not same. Let two cells E1 and E2 having internal resistance R1 and R2 are connected in series. We are having a three junction point A, B and C. We connect it into make a combined form, that is AC. You can see A, B, C are the junction point, and here AC we are getting the effective value. Now let two cells EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series. Let potential at A, B and C are VA, VB and VC. VAB is equal to VA minus VB. That will be E1 minus IR1. From formula V is equal to E minus IR. Now VBC is equal to VB minus VC is equal to E2 minus IR2. हमारे पास दो इक्वेशन हो गए दोनों सेल के अलग अलग। अब आप देखिए इन दोनों सेल का जब हम कंबाइंड फॉर्म निकालेंगे तो वी ए सी अगर निकाल रहे हैं ए और सी के बीच में, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, दोनों की वैल्यू हम लिख दें ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, तभी कंबाइंड हो जाएगा ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। अब आप देखेंगे ई वन प्लस ई टू हमारा कंबाइंड इफेक्टिव ईएमएफ हो गया और आर वन प्लस आर टू हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया। वी ए सी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वेयर ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। हमें वैल्यू लिख सकते हैं ई वन प्लस ई टू अपान आर प्लस आर वन प्लस आर टू। दिस इज द combination when cell are combined in series. Now parallel combination। अब आप यहाँ कंसीडर करिए कि दो सेल हैं हमारे सेम E1 और E2, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। यह हमारा जो कम्बिनेशन बन रहा है A, B, C और D, हमने यहाँ पर और पॉइंट ले लिए D और C। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लेट वी ए वी बी बी सी एंड बी डी आर द पोटेंशियल एट ए बी सी एंड डी। यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ वी बी, यहाँ वी डी और यहाँ पर आपका वी सी है। फर्स्ट सेल वी ए माइनस वी सी, अगर हमने वी सी ले रहे हैं तो वी ए माइनस वी सी, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर है केवल, तो जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इनके बीच का होगा वी बी माइनस वी डी। तो ये हो जाएगा ई वन माइनस आई वन आर वन। इससे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको हम वी ए सी लिखें ई वन माइनस आई वन आर वन। तो आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी। इससे I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस वी अपान R1। और सेकेंड सेल से हमारा आ जाएगा VAC, सेम उससे निकालेंगे तो हमारा आएगा VAC VA माइनस VC इक्वल टू VB माइनस VD या V। इससे होगा E2 माइनस I2 R2। I2 की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस V अपान R2। अब दोनों सेल से हमारी करंट मिल रही है I1 I2 और कंबाइन हो जा रहा है I, तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। हम दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जब हम दोनों वैल्यू यहाँ लिख देंगे तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, अब आप देखेंगे ई वन माइनस वी अपान आर वन प्लस ई टू माइनस वी अपान आर टू।
अब आप देखिए इसको केवल सॉल्वर किया गया है, अलग अलग लिख दिए। E1 अपान R1 माइनस V अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2। E1 फैक्टर एक साथ और V फैक्टर एक साथ लिख लिया गया, तो हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R1 प्लस V अपान R2। अब इससे आप LCM ले लीजिए R1 R2, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपान R1 R2। अब इनको हम सीधे लिख सकते हैं। अभी R1 R2 इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया I के साइड में, तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। एक इक्वेशन बना और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा V R1 प्लस R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। इसको इधर लेते गए और इस टर्म को इधर लेते आए और इसको इधर लेते आए, तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी E1 R2 R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देंगे प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो अगर हम इस फॉर्म में लेना चाहें तो हमारे पास इफेक्टिव EMF ये हो जाएगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से हो जाएगा। जब हम इस फॉर्म में लिखना चाहें V इज इक्वल टू E माइनस I फॉर्म में, तो E की वैल्यू हो गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 एंड R इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। या E बाई R अगर हम ऐसे लिखेंगे तो E1 अपान R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस EN बाई R1। इस तरीके से हमारा कम्बिनेशन ऑफ सेल हुआ। अब ये कम्बिनेशन ऑफ सेल का हमें यूज कहाँ है, जहाँ पर हमको न्यूमेरिकल लगाना हो, जहाँ पर हमको इफेक्टिव EMF ऐड करना हो, जहाँ कैलकुलेट करना हो, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ हुई हो, समझने में कोई दिक्कत हो, कठिनाई जा रही हो, तो आप हमसे फर्दर इस पर नोटिफिकेशन में लिख सकते हैं। डाउट्स आपके कुछ हैं वो पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। Again, if you have any doubt, any problems, you can ask me in a notification. You can write it there, and I will try my best to give you the proper answer of this. Please click the bell icon. If you have not subscribed at my channel, you can like and subscribe my channel, and please click the bell icon for the further notification. Thank you for the watching my video.